Kindly all see to it that your videos are off and your audios are also off. તમારા વિડિયો ઓડિયો બંને બંધ છે. તમારે કંઈ કહેવું હોય ત્યારે તમે હાથ ઊંચો કરીને કહી શકો છો અથવા ચેટ બોક્સમાં જઈને મને લખીને મોકલશો એટલે તરત મને ખબર પડી જશે. ઓલરાઈટ, સો વી આર સ્ટાર્ટિંગ નાઉ. આપણે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગના લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું તો તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો. યુ ઓલ કેન સી વી હેવ સ્ટાર્ટેડ વિથ યુનિટ 1. we have discussed the syllabus, we have discussed the types of accounting, બરાબર. અને એમાં આપણે અત્યારે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે that is introduction. We have started to the introduction to the management accounting. એ જે introduction નામનું ચેપ્ટર છે એમાં આપણે ભણ્યા છે લિમિટેશન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ એટલે શું લિમિટેશન્સ છે અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટની ડેફિનેશન. સો એકવાર ડેફિનેશન ઉપર નજર કરીશું and then I will proceed further. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रेजेंटेशन है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन किसका है? अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रादर. कैसे? सो एज टू हेल्प द मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन. सो ये तीन बातें, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way to help the management and creation of policy and day to day operation. So these were the this is the definition of management accounting or management accountancy. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, now we are talking about characteristics. એના લક્ષણો શું છે? સર આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને સ્કોપ ભણી ગયા. ક્યારે ભણ્યા? सर लिमिटेशंस तक करवा दिया आपने. તે લેક્ચર કમ્બાઈન હતા ને સી અને ડી નો એમાં જ. अच्छा अच्छा, એમાં જ तो ભણી ટૂલ્સ ગયા હતા ટેકનિક્સ પણ આપણે. अच्छा अच्छा, તો આપણે ટૂલ્સ ટેકનિક્સ પણ થઈ ગયું બેટા? ના, સ્કોપ પત્યું. પણ થયા ખાલી છે scope? કેરેક્ટર ના સ્કોપ ના. હા ઓકે, તો ટૂલ્સ ટેકનિક્સ બાકી છે એમ ને? હા હા સર. ઓકે, તો સ્કોપ સુધી આપણે ભણ્યા છે, સ્કોપ અને ફંક્શન, રાઈટ? ના સર ફંક્શન બાકી છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને સ્કોપ પતી ગયું. ઓકે ઓકે, સો વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ફંક્શન. તમે ક્યાં લખેલું છે? એ આઈ થિંક લાસ્ટ ટાઈમ કમ્બાઈન લેક્ચર, એ લાસ્ટ ટાઈમ કમ્બાઈન લેક્ચર હતું ને E1 E2 નું, ત્યારે હવે યાદ આવ્યું મને. રાઈટ રાઈટ, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કમ્બાઈન લેક્ચર હતું, કરેક્ટ. ઓલરાઈટ, સો આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી ફંક્શન્સ of management accounting. All right, so what are the functions of management accounting that we are going to discuss? The first function of management accountancy is to formulate the budget, formulate or prepare the budget. બજેટ બનાવવું, અંદાજપત્ર બનાવવું, બરાબર. The first function is budget prepare करना कि भाई क्या क्या एस्टिमेट है. अगर मुझे कोई कंपनी खरीदनी है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर, ठीक है, तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करनी है. ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है. दूसरा है क्लासिफिकेशन and arrangement of data, बराबर. मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या करता है? जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, वॉट एवर डेटा वी हैव कलेक्टेड, उसको क्लासिफाई करता है और उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करता है. ठीक है, એટલે बजट बनाना ये तो है ही पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन है कि जो भी डेटा मिला मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को, जो भी डेटा मिला बजट बनाने में, उस डेटा को क्लासिफाई करना. क्लासिफाई कैसे करना? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ताकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो मैनेजर्स को या टॉप लेवल ऑफिसर कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, अलग अलग ऐसे डेटा कलेक्ट करके उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते हैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे लोगों को समझ में आए. So classification and arrangement. The next is interpretation.
ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि जो भी अकाउंटिंग डेटा आपने दिया उसको इंटरप्रेट करता है। मतलब जैसे वो क्या बताता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बताऊं कि अभी लास्ट ईयर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% था, इस साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 9% है, तो ये 10% से 9% क्यों घटा, उसका इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग देता है। वो बताता है कि किन वजह से, देखो ग्रॉस सेल्स कम है, आपका कॉस्ट, तो ये इंटरप्रिटेशन न कॉस्ट अकाउंटिंग देगा न फाइनेंशियल अकाउंटिंग देगा, ये कौन देगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये बताएगा कि जो भी फिगर्स हैं उन फिगर्स का मतलब क्या है, उनके मायने क्या है। So interpretation of accounting data. The next point is management accounting helps to prepare routine reports and special reports. बेटा रूटीन रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रूटीन रिपोर्ट्स का मतलब रोज दर रोज जो हम रिपोर्ट बनाते हैं कि मैं रोज दर रोज क्या क्या काम किया, क्या क्या हमने एस्टिमेट किया, ठीक है, क्या हम चाहते थे हो और क्या हुआ, ठीक है। और स्पेशल रिपोर्ट जैसे कि मान लो कि मुझे कोई कंपनी खरीदनी है, आई वांट टू परचेज अ कंपनी, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया और उसको मैंने बोला कि तू मुझे एक रिपोर्ट बना के दे कि मुझे ये कंपनी खरीदनी चाहिए कि नहीं, वेदर शुड आई परचेज दिस कंपनी और नॉट। तो ये सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा ये रिपोर्ट्स बनाकर पब्लिश करता है ताकि जो अलग अलग टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इन चीजों को समझ सके, अलग अलग रिपोर्ट्स को जान सके और उसमें से वो लोग उसमें से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो कर सके। इन रिपोर्ट्स बनाने के बाद इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट कंट्रोल इफेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल को इफेक्टिव बनाता है। बराबर, इफेक्टिव कैसे बनाता है कि जैसे मान लो आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका काम कभी खत्म नहीं होता, इट इज ऑलवेज बराबर, ही नेवर सिट बैक ऑन हिज चेयर एंड रिलैक्स, क्योंकि इसका काम ही होता है डेटा का एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और कंट्रोल को इफेक्टिव बनाना। ये बात समझ लो। सो मैनेजमेंट कंट्रोल को इफेक्टिव बनाने में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का रोल बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कंट्रोल इफेक्टिव होगा तो वट एवर योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर दैट यू कैन अचीव इजीली। लेकिन अगर तुम्हारा कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होगा तो जो तुम्हारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तुम लोग अचीव नहीं कर पाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन of capital projects. देखो कैपिटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है कि जो चीजें आपको एक इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैपिटल प्रोजेक्ट का कैसे इवैल्यूएशन होता है। मान लो मुझे मेरी बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, अब मैं अहमदाबाद से दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में जाना चाहता हूँ। से फॉर एग्जांपल मुझे मेरा बिजनेस सूरत में सेटअप करना है, तो ये मेरा एक बड़ा कैपिटल प्रोजेक्ट है। तो मैं मेरे मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बोलूंगा भाई तू वहां पर जा और वहां का डेटा इकट्ठा कर, क्योंकि उसका काम ही डेटा इकट्ठा करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तू वहां जा, डेटा इकट्ठा कर और मुझे बता कि सूरत में जाकर मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वहां जाएगा, इस पूरे कैपिटल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेगा, कितना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या क्या सिनेरियो है, कहाँ से लेबर मिलेगा, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, ये सब चीजों का ध्यान मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखता है और उस कैपिटल प्रोजेक्ट का जो है हमें इवैल्यूएशन करके देता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर आपका नाम, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, बराबर। इस सेमेस्टर में तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट चैप्टर आएगा, इसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इस बार बजटिंग है मगर कैपिटल बजटिंग नहीं है। उसमें अलग अलग मेथड्स है, पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ऐसी बहुत सारी मेथड है जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे।
So these are the functions of management accountancy. बोलो कोई ना कहीं पूछू છે અહીંયા? Yes, Harshita, you can say, of course. You want to add something? Yes, please, please. You are most welcome. Harshita. Harshita Bhandari. Am I audible? Hello. Hello, મારો અવાજ આવે છે ને? યસ સર. Hello. હા સર આવે છે. Yes, sir. Okay. Harshita Bhandari, you can add beta. Harshita Bhandari. Hello. Harshita, are you there? Okay, चलो. I think I lost the connection. Yes, બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું છે બેટા? તો આગળ વધું. Please raise your hand or હા chat with. સર ક્લિયર. Clear. Okay. All right. So I am proceeding further. Let us wait for Harshita. वो बेचारी बोले कुछ. चलो ठीक है. Let us proceed then. Okay. So these were the functions of management accounting. Now we go to the next topic in this particular point. The next topic is the tools. Yes, Harshita, please say. Harshita गायब थी. Harshita, hello. No, you are not audible. Harshita, you are not audible. Unmute तो सुनाई देगा. तूने अपने आप को म्यूट किया हो, इससे सुनाई नहीं दे रही आवाज तेरी. Kindly unmute yourself, Harshita, and speak. हाँ तो you are unmute. No beta, you are not audible. Huh? Hello. Yes, Harshita, please say. All right, let us proceed. Now let us proceed to the tools and techniques of management accounting. Okay, what are the tools and what are the techniques of management accounting? Harshita, your mic is open बेटा, I know, लेकिन तेरा आवाज नहीं आ रहा है. कोई और किसी को हर्षिता का आवाज आ रहा है? हेलो. नहीं सर. हाँ खाली आपका हर्षिता आ का रहा है। आवाज. हाँ बेटा हर्षिता तेरा आवाज किसी को भी नहीं आ रहा. All right, you can type and say. No, your voice is also not coming to me. Your voice is also not audible, beta. Sorry. You can type, no problem. You can type and tell me. Okay. What are the tools and techniques of management accountancy? Management accounting के tools और techniques क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. आप यूँ समझ लो जो tools और techniques मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो तुम्हारे चैप्टर्स हैं. ठीक है, कुछ आप इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, कुछ आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे. The first technique, the first tool of management accounting is standard costing. बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि आपने एक अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि भाई मेरा इतना ही कॉस्ट होना चाहिए, इतना ही मेरा मटेरियल का यूसेज चाहिए, इतना ही मेरा लेबर का कॉस्ट होना चाहिए. उस स्टैंडर्ड को फिर आप एक्चुअल से कंपेयर करते हो. बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लाइक एस्टिमेटेड कॉस्टिंग. आप अंदाज करते हो कि भी मेरा इतना कॉस्ट होगा, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. नेक्स्ट सेमेस्टर सेम 6 में इसके दो चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2. उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के बारे में आप अलग अलग वेरिएंसेस के बारे में पढ़ोगे. दिस इज इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर. दिस इज योर फर्स्ट टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग.
The second one is marginal costing. Marginal costing is also known as variable costing. देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेरिएबल कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इट चेंजेस विद द चेंज इन द प्रोडक्शन. जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना तुम्हारा क्या बोलते हैं कॉस्ट बढ़ेगा. जबकि जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन. तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी तुम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे. प्रॉफिट इक्विटी, पी रेशियो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज कॉस्टिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. द थर्ड वन इज बजटरी कंट्रोल. वो तो आपको इसी सेमेस्टर में है. ओके, बजटरी कंट्रोल जो है वो आप इसी चैप्टर में, इसी सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो. दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एज वेल. बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि जो आपने बजट बनाया, जो भी आपने एस्टीमेट बनाया, उस एस्टीमेट के हिसाब से ही आप चल रहे हो या नहीं, उसे कहते हैं बजटरी कंट्रोल. आपको ये देखना होता है कि whatever budget you have prepared, whatever estimated cost sheet you have prepared, your actual cost is also similar to that. If it is not, then there is a need of budgetary control. The fourth point in that is historical costing. Yes, Arshita, you are correct. Ratio analysis also is one of the tools and techniques. Yes. Historical costing क्या होता है कि जो कॉस्ट मैंने ऑलरेडी इंकर कर दिया है, whatever cost I have already incurred, जो खर्चे मैंने कर दिए हैं, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो है, जैसे कि मान लो मैंने एक असेट 10 लाख में खरीदा, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए क्या हो गई, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हो गई. अब मान लो मैंने असेट 10 लाख में खरीद लिया, अब मैं उसको दूसरे दिन बेचने जाता हूँ तो मेरे को 10 लाख ही मिलेंगे? कभी भी नहीं, नेवर. 10 लाख से तो कम ही मिलेंगे. क्योंकि कोई भी इंसान क्या सोचेगा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक्टिवा है, बराबर. आज आपने एक्टिवा खरीदी, ठीक है, आपने लेफ्ट से फॉर एग्जांपल आपने 80,000 में एक्टिवा खरीदी, आपने उसको एक दिन यूज किया और नेक्स्ट डे बोला कि नहीं यार मुझे एक्टिवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और खरीदना है. तो आप एक्टिवा बेचने जाओगे तो आपको 80,000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आपको कम ही मिलेंगे. क्योंकि कोई भी बंदा क्या सोचेगा, साला 80,000 में एक दिन पुरानी एक्टिवा में क्यों लूं, तो मैं जाके नई एक्टिवा ना खरीदूं 80,000 रुपीज देके. तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में भी ऐसा ही होता है. हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मतलब द कॉस्ट दैट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड, यू हैव टू फॉरगो इट. अब उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. लेट मी टेल यू, हम लोग हमारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स बताते हैं, वी शो ऑल द एसेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट. दैट इज द कॉस्ट दैट वी हैव incurred. The fifth tool is financial policy. And accounting. See, management accountancy starts as well as financial accounting end. So you can say that one of the technique of management accounting is also financial policies that are taken by the management at the top level and the financial accounting that is being considered. The sixth point is control accounting. Control accounting में क्या होता है बेटा? Control accounting में there is a total control on activity में तुम्हारा control, ठीक है. इसमें ना ये आप है ना मास्टर्स लेवल में पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग्स. मतलब अलग तरह के अकाउंटिंग्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट कंट्रोल होता है, फिर तुम्हारा फ्री फ्लो कंट्रोल. ऐसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. એના પછી છે તમારું 7th, that is decision accounting. डिसीजन अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें अलग अलग डिसीजंस अलग अलग टाइम पे लेने पड़ते हैं. वी हैव टू टेक डिफरेंट डिसीजंस. यस अर्शिता, यू आर करेक्ट. मटेरियल कॉस्टिंग इज इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. लेट मी टेल यू, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल
लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये सबका कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ जाता है. सो वी नीड नॉट कंसिडर इट सेपरेटली. हाँ, तो हम बात करते हैं डिसीजन अकाउंटिंग की. डिसीजन अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे कि अभी हर्षिता ने बोला रेशियो एनालिसिस. सो रेशियो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन अकाउंटिंग. इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग क्या बोलते हैं कॉस्ट के या अलग अलग चीज़ों के रेशियोज निकाले जाते हैं, जैसे कि क्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, फिर तुम्हारा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो. ये सारे रेशियो के बेसिस पे, ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं. ओके, सो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. So here I finished the particular topic of tools and techniques. If anything, there is a question, I can take it for 2 minutes and then we can proceed further. Yes, any questions? Any questions, please? Any questions? No, No, sir. sir. Okay. हर्षिता बेटा अब अभी भी तेरा माइक ऑन नहीं हुआ लगता है. आई थिंक अगर तू माइक्रोफोन से यूज, अगर तू हेडफोन से यूज कर रही है ना, तो एक बार हेडफोन निकाल के फिर बात कर, तो शायद आवाज आएगा. क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपका हेडफोन कनेक्ट होता है लेकिन ऊपर वो सिंबल नहीं बताता हेडफोन का, ये भी हो सकता है. दिस कुड बी द रीजन इफ यू आर यूजिंग हेडफोन. और अगर तू लैपटॉप से बात कर रही है तो भी हेडफोन निकाल के ही बात कर, शायद आवाज आएगा. खैर, okay, no question till now. Now we go to the next topic of this particular chapter, that is limitations. Management accounting के limitations. I am not using any type of instruments. Okay बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट करते रहो, मैं देखता रहूंगा उसमें, डोंट वरी. आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बोलना हो, आई विल सी टू इट एंड आई विल ऐड, डोंट वरी. See, every accounting technique has its own plus and minus. कॉस्ट अकाउंटिंग हो उसके प्लस माइनस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लस माइनस है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो लिमिटेशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिए थे. उसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस है. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एज वेल. उसमें सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट्स आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मतलब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ झोल होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ गड़बड़ होगी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वो चीज कैरी फॉरवर्ड होगी. जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, यस, ओके, आई विल चेक. ओके, ठीक है बेटा, चेक कर ले, कोई बात नहीं. मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक्सपर्ट होना चाहिए. मतलब उसको अकाउंट्स के अलावा उसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज से नहीं चलेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है और उसमें से डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हेल्प भी करना है. तो मैं कहूँ तो उसको स्टैटिस्टिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए. और ऐसे एक्सपर्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है. दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी शोज फिगर्स इन मनी मॉनेटरी टर्म्स. देखो बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर जो नॉन मॉनेटरी होती है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में से मुकेश अंबानी इस्तीफा दे दे, तो क्या रिलायंस वो रिलायंस रहेगी? नहीं रहेगी. लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी जब अपना इस्तीफा देगा, अपना रेजिग्नेशन देगा, तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि वो एक क्वालिटेटिव टर्म हुआ, रेजिग्नेशन ऑफ द टॉप लेवल ऑफिशियल. किसी के कंपनी छोड़ जाने से, किसी के मर जाने से या किसी के रिटायर हो जाने से कंपनी पे असर पड़ता है, खास करके टॉप लेवल ऑफिशियल पे. अब टाटा में से आप रतन टाटा को निकाल दो तो टाटा टाटा नहीं रहेगा.
फिर वो टाटा गुड बाय हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, जिसको कोई भी अकाउंटिंग इंक्लूड नहीं करता है, फिर वो फाइनेंशियल हो, कॉस्ट हो या मैनेजमेंट हो। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूं, इट ओनली शोज द डेटा इन क्वांटिटेटिव टर्म बट नॉट इन क्वालिटेटिव टर्म। इट इज एक्सपेंसिव, यस इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको इसके लिए एक अलग अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। सो इट इज एक्सपेंसिव, यस ऑफ कोर्स you have to incur cost, you have to employ officers, you have to employ employees, you have to keep records, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको पूरा एक सिस्टम खड़ा करना पड़ता है इसके लिए अलग से। ओके, मैनेजमेंट डिसीजंस, देखो भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट कुछ भी बोले, छेल्ले डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेती है। लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो या ना हो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और लास्ट है देयर इज ऑपोजिशन अगेंस्ट न्यू सिस्टम। बेटा आ ध्यान रखो, जब भी कोई नई सिस्टम इंट्रोड्यूस होती है तो उसका ऑपोज पहले होता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, तो उसकी क्या बोलते हैं अपने लोगों ने सराहना तो बाद में की, लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसका ऑपोज करना शुरू कर दिया कि नहीं हमें नहीं पसंद, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नई सिस्टम आती है तो उसका ऑपोज पहले होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक नई सिस्टम ही है समझो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंशियल और कॉस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इट। With this, we complete our limitations of management accounting. Anyone want to add anything? Anyone want to say anything? Anyone want to ask anything? I keep this forum open for 2 minutes. 2 मिनट के बाद मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा. So you see to it कि आप लोग बेटा नहीं जाओ. Yes, anyone want to ask anything? First of all, let me ask that. किसी को कुछ पूछना है बेटा? You can chat with me or you can raise your hand. Harshita, you want to ask? You want to add something? सर थर्ड वाला पॉइंट में वो मॉनेटरी टर्म्स वाला एक बार फिर से करो। ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, बाकी सारे अकाउंट की तरह सिर्फ और सिर्फ जो मनी मेजरमेंट है वही कर सकता है। नॉन मॉनेटरी टर्म्स को ये इंक्लूड नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर अगर मान लो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है। इट इज अफेक्टेड, प्रैक्टिकली ये चीज होती है, लेकिन उसको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है। It only considers only and only those projects or those things which are calculated in terms of money. Yes, anything else? Not sir, thank you. Done? Okay. તો હું હવે અટેન્ડન્સ ડાઉનલોડ કરું છું, તમે લોકો જોજો કે તમે જતા નહીં. જ્યાં સુધી ડાઉનલોડ થાય ત્યાં સુધી તમે મને બીજા પ્રશ્નો પૂછવા તમે પૂછી શકો છો. બેટા anything you want to ask, you can open your mic and you can ask me. attendance sheet download થઈ રહી છે. all right, done. ચલો હવે હું મારી વાણીને વિરામ આપું, કોઈને કંઈ પૂછવું નથી, બધી ખબર પડી ગઈ. ओके, सो विद दिस वी फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1. यूनिट 1 का पहला चैप्टर खत्म हुआ. ठीक है, आप लोग ये सारे बेटा अपने बुक्स में लिख लेना और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर. बाय सर, बाय.